Welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where I have made things a little bit more simpler for me in my daily routine by doing this. काफ़ी टाइम बच जाता है, थोड़ा शैम्पू भी बच जाता है. ओके, जोक्स अपार्ट, वेरी क्विकली हमारा काम कंटिन्यू करते हैं. Today I will be continuing with the lecture series where I am teaching you, if you are in Maharashtra board HSC level, the chapter of partnership फाइनल अकाउंट्स. उसके पहले कुछ तैयारियां आपकी हो जानी चाहिए. वेरी क्विकली आई विल रिमाइंड यू, बट उसके पहले चैनल के बारे में आपको याद दिला देता हूं, विच इज समथिंग दैट आई हैव टू कंसिस्टेंटली डू. गेट कनेक्टेड टू अस विथ द फेसबुक पेज दैट वी रन, द इंस्टाग्राम ID as well as the Twitter handle. Above, Telegram channel, absolutely important. Obviously you're watching me on a smartphone, maybe a laptop, maybe a desktop, but टेलीग्राम ऐप उस पर डाउनलोड कर लेना फॉर श्योर. ओके, एंड वी यूज द टेलीग्राम ऐप फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन वेयर वी से you actually don't say because it's a one-way communication. Okay, so in that, regular updates about the lectures that are going to be premiered the next day, so you know exactly, for me, that is as a student, which chapter and what is the lecture that sir is going to be teaching. Besides that, if there are any formats to be informed you about, I will be doing that also. Again, that is also going to be via the Telegram app. Then the PDF of the question and answer of every sum, every solution, and of the entire chapter put together at the end of the chapter will be shared on the Telegram channel. So there are benefits and benefits and benefits. Please join the Telegram app. Also, if you have missed out the previous lecture, which is so important, क्योंकि हर lecture दूसरे किसी के साथ कुछ तो रिश्ता रखता है. ओके, सो अगर आपको ये सवाल नहीं करना ये रिश्ता क्या कहलाता है, then my advice is last lecture देख लेना. Above there is a I button, and if you do intend to purchase the textbook from where the question and answers will be generally solved, not today but generally solved, the purchase link is provided in the description below. Today and for the past 2-3 lectures I have been doing my own questions. Okay, reason being, agar textbook say if I do the first question of the chapter, it is a little bit of a higher level. If many of you, okay, have not understood the chapter of final accounts in your past year 11th standard, then directly solving a textbook question which is obviously of 12th standard level may be a little bit difficult for you to digest. So what am I doing? For the past 3 lectures I have individually alag separate coached you, tutored you, taught you a trading account क्या है, what to write, where to write, profit and loss account क्या है, what to write, where to write, and a balance sheet again क्या है, what to write, where to write. There were a few video clips which were used. Unfortunately so, आप कह सकते हो पोपट हो गया हमारा, क्योंकि the audio did not go through during the teaching session. Okay, next time say we will make sure that if a video clip is used, the audio is clear, because the video clip is less for the visual, more for the dialogue that is being said, क्योंकि वो somehow हमारे lecture के साथ में connected होता है. ओके, वो टेक्निकल ग्लिच अभी निकाल दी है. आगे से अगर वीडियो क्लिप यूज़ किया जाएगा, डोंट वरी, टाइम पास के लिए होता नहीं है. इट इज़ यूज्ड टू टीच यू सम पार्ट ऑफ द चैप्टर्स दैट आर बीइंग डन हियर. ओके, दैट्स प्रीटी मच इट. हम लोग शुरू कर देते हैं आज का कार्यक्रम. एंड व्हाट इज टुडेज कार्यक्रम? टू टीच यू वन क्वेश्चन, नो, 2 questions, where I will teach you all the last 3 lectures put together. So in the same question, trading करेंगे, profit and loss account करेंगे, balance sheet करेंगे. I repeat, in the same question, factory करेंगे, office करेंगे, and balance sheet, assets and liabilities. So you will get a good idea about कि ये चैप्टर में आगे जो होने वाला है वो एक्चुअली पूरी तरह से वो पिक्चर दिखेगी कैसे. ओके, ये पेज पे क्या है, फाइनल अकाउंट्स क्या है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, कब से कब तक उसको बनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस, एडवांटेजेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स
पूरा यहाँ पे है, ये मैंने 4 बार आपको बता दिया है. देन आई हैव ऑलरेडी थॉट यू व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री का हिसाब किताब, व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस का हिसाब किताब. ओके, कभी कभी टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है. ओके, एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये तो काफी डिटेल में हमने किया है. देन व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, दैट वाज द बैलेंस शीट. नाउ आई हैव separately thought you that this is a trading account. इस तरह बनाओ, इस तरह तैयारी करो, इस तरह ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल. You have most probably in your notebook solve this singular. Okay, तो this I think, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, ऊपर लिखा है in the books of partner, क्योंकि आगे जाके वो पार्टनर होगा, बट ये था प्यारे लाल. Then separately I thought you a profit and loss account on one day in one lecture कि ये ऑफिस है, ऑफिस में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, all is done, but separately. And then separately I thought you a balance sheet. The thing is, ये separately नहीं आएगा. Actually possible है, there is a possibility इत्तू सा that the examiner can say I am only interested in profit and loss account, I am only interested in balance sheet, and he is not interested in the remaining. Then okay, तो आपका काम तो और कम हो गया. But if the examiner is going to like normally ask the whole question, so you can't do this separately, you have to do it together. Now hold on, पूरे चैप्टर को पहले पूरे अकाउंट्स को एक पेज पे लेके आ जाता हूं. सो क्या क्या आपने सीखा है? फैक्ट्री गोदाम, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, liabilities and assets, balance sheet. Pay careful attention. Trading account is for past tense, मतलब 12 महीने, पिछले 12 महीने. सेम फॉर ऑफिस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पास्ट टेंस. बट व्हेन इट कम्स टू अ बैलेंस शीट जो मेरे पीछे है, इट इज फॉर द फ्यूचर टेंस. कल क्या होगा, कल अच्छा होगा, कल बुरा होगा. एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट एंड लाइबिलिटीज कल की चीज है, कल की चीज है. सो ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया, वो 1 साल का होता है, फॉर द ईयर एंडेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सीख लिया, वो भी 1 साल का होता है, फॉर द ईयर एंडेड. बट बैलेंस शीट माय डियर, मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल का नहीं होता, 1 दिन का होता है. ओके, और उस दिन के बाद आगे भविष्य में बिजनेस की कौन सी चीजें जाएगी, अच्छी बुरी, एसेट एंड लाइबिलिटीज. ओके, टुडे माय प्लान इज कि एक सिंपल सम जो अपनी खेती का है, ओके, तो स्टीवन सर्स फार्म यार्ड, ओके, अपने ही बनाया है. फ्रॉम देयर लेट मी टेक वन सम एंड टीच यू ऑल ऑफ दीज टुगेदर. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि पूरा सम कैसे सॉल्व होता है, बट इन अ सिंपल मैनर, ओके, ताकि डाइजेस्ट हो सके. फाइन. फर्स्ट सम यू सॉल्व विथ मी फुल्ली, स्टार्ट टू एंड. सेकेंड सम आई विल पार्टली सॉल्व, एंड काइंड ऑफ अ होमवर्क असाइनमेंट. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप वो अपने आप सॉल्व कर लेना, एंड देन कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैं आपको करूंगा उसका आंसर्स डेफिनेटली शेयर कर लेना. बाकी आई विल लेट यू नो वेदर दोज आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. इन फ्यूचर होमवर्क असाइनमेंट्स के जो सोल्यूशन रहेगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे वैसे भी मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू बी कंडक्टिंग द लेक्चर सीरीज. आगे जाके फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर स्टडीज आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट and make more changes whereby the lectures are a little bit more useful to you and a little bit more simpler to understand. So what are we doing today? Okay, एक मिनट, पोजीशन चेंज कर देता हूं. This is the plan. You can pause the video and you can understand कि on your first 2 pages, left right, you have to prepare 2 accounts जो already आपने बनाया, but आज together, well not आज से आगे. So left page पे for around half page काफी है, you will prepare trading account.
I repeat, notebook open. If I'm going fast, pause me, so I will wait. Okay, and you look at what Steven Sir has done above. Okay, so in the books of, उसका एक नाम आने वाला है, डोंट वरी, आज ही करना है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल, ये सब लिख के रख लेना. देन ऑन द राइट पेज, दैट वाज लेफ्ट, ये राइट है, राइट, you will draw profit and loss account. If you are my student in the past year, if you are not, no problems. But profit and loss account में कहाँ पे, center में, center, you have to write a formula which we call as BANO, BANO, BANO. एक मिनट, ये क्या फॉर्मूला है? देखो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, ये आया ना, अट्रैक्ट करने के लिए आपका ध्यान. BANO का फुल फॉर्म, B फॉर बैड डेप्ट, A फॉर एडिशनल बैड डेप्ट. बैड डेप्ट मतलब नुकसान, कस्टमर भाग गया, एक कस्टमर भाग गया, बैड डेप्ट, दो और भाग गए, एडिशनल बैड डेप्ट. न्यू RDD मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, एंड O इज ओल्ड RDD, old reserve for doubtful debt. I will explain this formula in a very आराम से manner in upcoming lectures. Today why am I telling you? Because I want you to keep this formula ready. It's a part of the तैयारी that we do. जो तैयारी करके रखते हैं ना, ओके, कि भाई कुछ काम करना है, let me prepare for it in advance. हाँ, so this is a बानो फॉर्मूला. एंड में लिखा है TAAT. T का मतलब ट्रायल बैलेंस, A का मतलब adjustment, again adjustment, again trial balance. Okay, today I am not going to talk about adjustment. मैं बोलूँगा ही नहीं, तो might as well अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ. हम लोग सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और पूरा सम को खत्म करेंगे. मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, राइट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उधर फैक्ट्री, इधर ऑफिस, एंड ऑफिस के अंदर हम लोग BANO, 2 प्लस प्लस माइनस, एग्जैक्टली लुकिंग फॉर्मूला, सेंटर में, ऊपर 6 लाइन, नीचे 6 लाइन, सेंटर में लिख के रख लो. ओके, इट शुड नॉट बी सिमेट्री, मत करना कि सर लेट मी डू ज्योमेट्री, ऊपर नीचे सेंटर, नहीं, इट शुड लुक इन द सेंटर. हाँ, दिस इज व्हाट यू डू ऑन पेज 1, मैंने एक्चुअली लिख के भी रखा है, एंड पेज 2, देन ऑन पेज 3 and 4, देन ऑन पेज 3 and 4. दिस इज व्हाट यू डू. प्लीज लुक, देयर इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट्स ऑन 2 pages, 3 and 4. okay, particulars, फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड पार्टनर, डोंट राइट फर्स्ट पार्टनर, उधर एक नाम आएगा, राम, श्याम, अमर, अकबर, नरेंद्र, अमित, कुछ ना कुछ नाम आएगा. ओके, डोंट वरी, आपको जो नाम पसंद नहीं है हम नहीं लिखेंगे. हाँ, एंड पर्टिकुलर्स, डेबिट में 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स फर्स्ट सेकेंड पार्टनर, क्रेडिट में 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स फर्स्ट सेकेंड पार्टनर. Partners capital account you can prepare for around 5 lines, 5, and below that is the balance sheet. This is as on 31st March. Whatever is the remaining lines, maybe 10, 12, 15 line बच जाएगा. If it's a big book तो ज़्यादा line बच जाएगा. हाँ, so on the third page liability amount, but on the right page asset amount. I repeat, this is your format. Forever, all problems from the textbook will be solved like this. Many of the professors in many other colleges थोड़ा अलग फॉर्मेट करते हैं. ओके, कुछ प्रोफेसर्स इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ही नहीं है. ओके, आई वंडर क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ लॉट मोर ईजियर टू टीच अ स्टूडेंट if there is a partners capital account. Textbook में and some professors, nothing wrong, whatever happens in partners capital account, they fit it in the liability, they fit it. तो liability बहुत लंबा हो जाता है, very long.
वो करने की जरूरत नहीं। सो जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर माई बेटर एक्सप्लेनेशन, प्लीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाइन के लिए बना दो। आई रिपीट, पॉज कर सकते हो, पूरा तैयारी कर लेना एंड देन अनपॉज एंड कंटिन्यू, बिकॉज माई नेक्स्ट सीन इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट क्वेश्चन, बट बिकॉज वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आई वॉन्ट योर format to be ready. Make sure the format is ready in your accounts notebook and then we get started. So here goes. Hopefully मेरे को unpause कर दिया है आपने. And हमारा first question, not from the textbook. This question is Steven Sir Farmyard. Okay? अपनी खेती बाड़ी का question है. Shireen and Farhad are partners. So 2 partners, not 1, 2 partners. From the following trial balance, so what you see behind me is a trial balance. If somebody of you is thinking, so trial balance क्या होता है? See, simple. एक statement है, एक पेज जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखे हैं. अकाउंट्स में एसेट डेबिट में आता है, लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट में आता है, इनकम क्रेडिट. सो इट्स अ स्टेटमेंट जो एंड में सेम टोटल है, उधर 10,20,000 है और इधर 10,20,000. इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, in every question, normally in every question you will be given a trial balance. In the trial balance, it's a big one. क्या क्या है मुझे पता नहीं, पढ़ के देखना पड़ेगा. Asset, liability, expense, income, वो when we actually read the sum, okay, then I will explain to you this is this, that is that. आपको एक एक करके सब कुछ समझ में आ जाएगा. okay, whenever you get your textbook, वो टेक्स्ट बुक में आपको मार्किंग करनी पड़ेगी. आई विल ऑल्सो बी डूइंग द मार्किंग्स बट नॉट टुडे. टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. इसको यहाँ से पिकअप करो, फैक्ट्री में डाल दो, इसको यहाँ से पिकअप करो, एसेट में डाल दो, लाइबिलिटी में डाल दो. ओके, तो वो मैं आज से आपको एक ट्रेलर दे रहा हूँ. डू पे केयरफुल अटेंशन. रीजन बीइंग द सेकेंड सम विच इज पार्टली अ होमवर्क असाइनमेंट इज वेरी सिमिलर टू दिस वन. और उस सम के लिए मैं आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन करूंगा जो कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करने के बाद में ऑब्वियसली लिख देना है. ओके, सो करना क्या है, तैयारी करके रख लो. एंड व्हाट इज द तैयारी? वेल, यू शुड हैव इन द बुक्स ऑफ शिरीन एंड फरहाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बानो लिख कर रखो. एंड above partner 1, partner 2 नहीं, Shireen Farhad. Okay, then on the credit side there is by balance brought down, वो opening capital है, that I will show you कि वो कहाँ से आता है, and the balance sheet. Okay, so these 4 pages 1, 2, 3, 4 should be completely ready. I repeat, today I am not talking about adjustment. What is an adjustment? Sir, adjustment कैसे करते हैं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा. व्हेन आई इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट कि व्हाट इज एन एडजस्टमेंट एंड इन फाइनल अकाउंट्स हाउ इज एन एडजस्टमेंट टू बी सॉल्व्ड. टुडे ओनली ट्रायल बैलेंस. सो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन यू हैव अ लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड अ लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस. डेबिट में क्या है देखते हैं और फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं. आई रिपीट, हम लोग व्हाट आर वी डूइंग? Transfer. So the last 20 odd minutes I am only trying to tell you we are solving one full problem, okay, from the trial balance. Adjustments होते हैं but आज के समय में adjustments नहीं है. It is not there. Okay, only trial balance is there. Debit में first क्या है? Purchases. Where do you purchase? You purchase in a factory. क्योंकि ऑफिस में तो जगह वैसे भी होती नहीं है. So the first item, purchases, 1,40,000. Where do we write? In which account? Factory में चले जाओ, meaning trading account, और inner column में लिखना. I repeat, if you look above, inner column में 1,40,000. If you ask me, sir, inner column में क्यों लिखा? क्योंकि purchase return कभी आता है और उसको अगर वो आता है
उसको माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर आंसर आउटर कॉलम में हम लोग डालते हैं। ओके, इसी प्रॉब्लम में नहीं, अगर हम लोग 20 प्रॉब्लम्स करें तो 20 टाइम्स आपको 25 उधर ही लिखना है। तो फैक्ट्री का जो शक्ल है वो बदलता नहीं है, इट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट आइटम, सन्ड्री डेटर्स। कौन है? कस्टमर। कस्टमर कल परसों हमको पैसे देगा, ये दैट इज सो नाइस, अच्छी वाली फीलिंग आएगी। हाँ, तो जेब में अगर नोट आएगा तो अच्छी वाली फीलिंग आएगी ना। सो इट इज एन एसेट, रिसीवेबल। So sundry debtors are written on the asset side. This is how they look. Asset side, first line, 2 lakh. Today we don't have any adjustments. Okay, many of you who 11th standard may have done this chapter, आपने सुना रहेगा bad debt, additional bad debt, new RDD. नहीं, आज वो कुछ नहीं है, सिंपल रखा है। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। दिस इज अनदर वर्ड फॉर सेल्स रिटर्न। कस्टमर को गुस्सा आया या जो प्रोडक्ट उसको हमने दिया वो खराब निकला, वो डैमेज हो गया, तो वापस आ गया। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, हाउ मच इज इट? 4000। सो क्रेडिट में यू सी सेल्स रिटर्न उसके नीचे लिखा है, रिटर्न इनवर्ड, आई होप यह दिखता है। तो ये रिटर्न इनवर्ड में आपको लिखना है -4000, क्योंकि वो सेल से माइनस होगा, सेल से। अभी मत करो क्योंकि सेल्स अब तक आया नहीं है, जब भी आ जाएगा तब हम लोग माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट, समथिंग न्यू, बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव डन व्हाट? परचेसेस, डेटर, रिटर्न इनवर्ड, बट ड्रॉइंग्स ऑफ 2 पार्टनर्स, शिरीन एंड फरहाद। मतलब शिरीन अपने घर वालों के लिए, फरहाद अपने घरवाली के लिए पैसे लेके गया 5000, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। कहाँ पे लिखते हैं? पार्टनर के अकाउंट में। सो इन द पार्टनर अकाउंट, डेबिट साइड, क्योंकि अभी आप लोग डेबिट साइड पे हो, डेबिट साइड, यू विल राइट 2 ड्रॉइंग्स, 5000। लाइक आई सेड, सम टीचर्स डू दिस इन द लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड काफी लंबा हो जाता है एंड कभी कभी फिट नहीं हो पाता, सो इट्स अ गुड आइडिया टू डू इट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अभी व्हाट हैव यू टू रिमेंबर कि जो डेबिट है ना वो हम डेबिट में लिख रहे हैं। एक बात थोड़ा अलग था, रिटर्न इनवर्ड जो है, कौन सा? ये क्रेडिट में गया, आप देख सकते हो आपके नोटबुक में, बट प्लीज नोट वो क्रेडिट में गया तो वो माइनस हो गया। तो इन अकाउंटेंसी लाइक मैथ्स इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इफ एन आइटम फ्रॉम द लेफ्ट नंबर अमाउंट गोज टू द राइट, उसको माइनस कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं है। बट अदरवाइज डेबिट अमाउंट, डेबिट लिस्ट मस्ट गो टू द डेबिट साइड, क्रेडिट लिस्ट मस्ट गो टू द क्रेडिट साइड। सो नेक्स्ट, सैलरीज 12,000, ये ऑफिस वालों का पगार है, ऑफिस वालों का। इफ यू आर समवन अबाउट 2 सैलरीज 12,000, हु इज कंफ्यूज, सर आप फैक्ट्री वाला बोल रहा है, ऑफिस वाला बोल रहा है, देन मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा प्लेलिस्ट में पीछे जाना, लुक एट द वीडियो जहाँ पे मैंने फैक्ट्री समझाया है, लुक एट द वीडियो जहाँ पे मैंने ऑफिस समझाया है। ओके, तो थोड़ा आपको आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ेगा। नेक्स्ट, आफ्टर सैलरीज, कोल, कोयला, गैस, नॉट जो बॉडी में होता है ज़्यादा खाने के बाद, नहीं वो गैस नहीं, एंड वाटर, नॉट बिस्लेरी वाटर। दीज आर थिंग्स जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, ओके, प्रोडक्शन के प्रक्रिया में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो फैक्ट्री का खर्चा है, देयरफॉर फैक्ट्री में लिखेगी ऑन द डेबिट साइड। सो प्लीज लुक टू coal, gas and water 5,000. If you cannot fit it in one line, don't worry, 2 लाइन में लिख लो, no problems. Bank charges, nowadays bank does a lot, बहुत काम करता है, because everything has become digital. Wherever you go, GPay, PhonePe, MobiKwik, यही चलता रहता है। एवरीथिंग इज अ सर्विस दैट द बैंक प्रोवाइड्स। कहाँ ना कहाँ पे डिजिटल सर्विस बोलेगे तो बैंक को आना ही चाहिए। हाँ,
So how much is it? 7,000. It is not connected to factory. बैंक का जो काम है वो फैक्ट्री के साथ कोई कनेक्शन रखता नहीं है. तो ऑफिस में लिखो, ऊपर देखो सेकेंड लाइन में, टू बैंक चार्जेस 7,000. Okay, so please do that. Next, डिस्काउंट 20,000 डेबिट में है. डिस्काउंट इज माइंड जॉब. ओके, इनफैक्ट मेरा माइंड तो बहुत तेजी से, क्योंकि उस पर बहुत क्या कहते हैं, ओके, there's a lot of breeze hitting it, तो शांत है मेरा माइंड. ओके, इन एनी केस you all don't do it. हाँ, so 20,000 डेबिट का डिस्काउंट है. इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड. कोई पूछ नहीं रहा आपसे बताओ सर ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है. कोई नहीं आपका इंटरव्यू ले रहा. Debit discount will go to the debit side. It is a mind calculation and calculations are done in an office. तो ऑफिस में डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट 20,000. Next, works manager salary. You see a normal manager always is in an office. अगर आप कहाँ पे जाओगे और आप अगर सेल्समैन पे भड़क जाओगे, यू विल से मैनेजर को बुलाओ. ओके, मैनेजर अपने ऑफिस से आएगा. ओके, बट वर्क्स मैनेजर अलग बंदा होता है. द वर्ड वर्क्स मीन्स पसीने का काम. और ये पसीना कहाँ पर बहता है? नॉर्मली फैक्ट्री में, बिकॉज इट्स अ वेरी हॉट क्लाइमेट, बिकॉज देयर आर मशीन्स आर वर्किंग, कोल, गैस. ओके, तो ये वर्क्स मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर है. तो फैक्ट्री में आपको लिखना पड़ेगा, उसका पगार है कितना? 18,000. तो फैक्ट्री में वी आर राइटिंग टू वर्क्स मैनेजर सैलरी 18,000. नेक्स्ट, लीगल चार्जेस. वकील का चार्जेस, वो पेपर वर्क करता है और वो ऑफिस में होता है. सो लीगल चार्जेस ऑफिस में ऊपर P&L में, टू लीगल चार्जेस 30,000. वेरी सिंपल. डेबिट है तो डेबिट में लिखो. डोंट वरी सर क्रेडिट में कब लिखना है? जब क्रेडिट में जाओगे तो क्रेडिट में लिख लेना. नेक्स्ट, गुडविल. व्हाट इज गुडविल? रेप्यूटेशन, इज्जत. ओके, गुड रेप्यूटेशन, नॉट बैड रेप्यूटेशन. ओके, गली में हमारा, सोसाइटी में हमारा गलत नाम नहीं है, अच्छा नाम है. अच्छा, सो गुडविल से क्या होता है? काम आता है. गुडविल मेरे लिए काम आता है, मेरे बच्चों के लिए काम आएगा. ओके, सो इफ समवन, फिल्म एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ओके, पॉलिटिशियन डज गुड वर्क, और उसके वजह से दे मेक अ गुड नेम इन द सोसाइटी. ओके, तो ऑटोमेटिकली उसका असर उनके कैरियर पर और उनके बच्चों के कैरियर पर अच्छा होता है. सो गुडविल इज गुड रेप्यूटेशन, फ्यूचर में काम आता है. हाउ मच? 1,40,000. तो राइट ऑन द एसेट साइड, गुडविल 1,40,000. नेक्स्ट, पेटेंट 3 लाख. क्या है पेटेंट? मेनी ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड. मैंने ऊपर लिख दिया एसेट. फॉर दोज ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड, पेटेंट का मतलब क्या है? ड्यूरिंग कोविड टाइम्स vaccines were made by many companies. So there is a company based in US which is called as Pfizer. There is a company based in UK which is called as AstraZeneca. There is companies in Russia. Okay, there is companies in China. Okay, जहाँ से ये originate हुआ. These companies have made vaccines and everybody has made the vaccine का cocktail mixture in their own style, and they don't want to share their ingredients with anyone else, because what are they saying? हमने मेहनत किया, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमने इतना पैसा डाला है. सो इन अ वे करेक्ट है, उन्होंने इतना मेहनत किया है. दे हैव पेटेंट. ओके, तो यूके वाले के पास अपना पेटेंट है, यूएस वाले के पास अपना पेटेंट है, चाइना वाले के पास, रशिया वाले के पास, सबके पास अपना 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 अपना. इनफैक्ट इंडिया के पास भी देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है. ये उनका मसाला है, भारतीय जुगाड़ू मसाला. ओके, दैट आल्सो इज एन इफेक्टिव वैक्सीन. एवरीबडी हैज देयर पेटेंट एंड देयरफॉर यू कैन कॉपी. मेरा टाइप का वैक्सीन तू कॉपी मत कर. ओके, तू तेरा देख.
पेटेंट आप जो इन्वेंट करते हो ना उसको बचाता है कॉपी से. ओके, चाइना छाप, चाइना कॉपी होने वाला नहीं है. उन लोगों ने अपना बनाया है बट कॉपी नहीं होगा. सो इट प्रोटेक्ट्स योर इन्वेंशन. इट इज अ बॉडी गार्ड. ओके, अलादीन का चिराग में से जीने आता है ना, इट इज अ बॉडी गार्ड. इट विल प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. कोई कॉपी नहीं करेगा. आप ही वो वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बेचो और पैसा कमाओ. नेक्स्ट, bad debt, very important. You have a formula in the office which I am calling as BANO, BANO. उसका जो B आपको दिखता है उसको कहते हैं बैड डेप. व्हाट इज बैड डेप? अरे कस्टमर पैसा लेके भाग गया तो नुकसान हो गया, बैड डेप. नुकसान हो गया, बैड डेप. सो बैड डेप के फॉर्मूला में बैड डेप लिखो 20,000, क्योंकि वो T का मतलब ट्रायल बैलेंस. हाँ बराबर, वी आर रीडिंग ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000. ओके, लेटर ऑन ये आएगा ओल्ड RDD, क्योंकि वो भी T ट्रायल बैलेंस में आता है. टुडे आई एम नॉट टीचिंग एडिशनल बैड डेट, न्यू RDD. आज नहीं हुआ उसका टाइम आगे होगा. हाँ, सो वेरी सिंपल. फॉर्मूला के अंदर हम लोग ने अंदर का कॉलम, इनर कॉलम. नेक्स्ट, इट सेज ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन 11th स्टैंडर्ड. सो 60,000, एकदम ऊपर. नेक्स्ट, लूज टूल्स. एसेट होता है स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन, पाना, जिससे काम प्लम्बर काम करता है, इलेक्ट्रिशियन काम करता है. ओके, सो लूज टूल्स एसेट 30,000. They cannot work and they use it for many years. Cash in hand, asset होता है. Everybody likes to have cash in hand, in purse, in bank. So what have we done? 24,000. हमने ना डेबिट खत्म किया. Assets are debit. So everything right now, trading का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, एंड नाउ एसेट्स डेबिट. नाउ विल स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड. तो वो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग. सम ऑफ यू विल बी ए लिटिल कंफ्यूज. प्लीज टेंशन मत लो, बाल झड़ने मत दो. क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मेनी टाइम्स, 15, 20 टाइम्स. 20 टाइम्स में रिपीट करूंगा तो यू विल गेट गुड, बेटर, बेस्ट. माई प्रॉमिस, यू विल गेट गुड, better, best. First day पे everything is not digested, especially if you have missed out the 11th standard final accounts. तो थोड़ा टाइम जाएगा बट समझ में जरूर आएगा. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, क्रेडिट साइड, कमीशन इज अ माइंड कैलकुलेशन. वो ऑफिस में होता है तो मैं ऑफिस के क्रेडिट में लिख रहा हूँ. सेकेंड लाइन में क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट लाइन में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, एंड ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट, डिस्काउंट. वो भी दिमाग का कैलकुलेशन है. 2%, 5%, 2.5%, 6,000. सो ऑन द क्रेडिट साइड, बाय डिस्काउंट 6,000. क्रेडिट था तो क्रेडिट में लिखा. ओके, ऑल माइंड कैलकुलेशंस हैपन इन ऑफिस. ओके, नेक्स्ट, RDD, ओल्ड RDD 2000. क्यों ओल्ड? क्योंकि वो पहले से है, आपने थोड़ी कैलकुलेट किया, पहले से क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन मतलब ट्रायल बैलेंस. प्लीज नोट, दिस इज द क्रेडिट साइड बट द फॉर्मूला ऑफ बानो इज ऑन द डेबिट साइड. तो आप नोटिस करो यहाँ पे माइनस है, ऊपर माइनस. हमेशा ये ऐसा ही होगा, हमेशा. RDD फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ द क्वेश्चन विल कम टू द डेबिट साइड. माइनस, इनफैक्ट माइनस करके बाहर डालो. 18,000, 20 माइनस 2, 18,000. यू मार्क्स से वो बीच का क्या है? आज हम बीच का नहीं पढ़ा है, वो टाइम है, जब टाइम आएगा तब पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो. ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड. परचेज रिटर्न हमने वापस दिया,
खराब सामान हमने वापस दिया. ओके, सो पहले खरीदा, परचेस, फिर परचेस रिटर्न आउटवर्ड 4000. गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस रिटर्न इज गिवन देयर, उसके नीचे रिटर्न आउटवर्ड है माइनस. सो 1,40,000 माइनस 4,000, 1,36,000. आउटर कॉल 1,36,000. नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर. मैंने कहा था एग्जाम्पल में, व्हेन आई वाज टीचिंग विद द बैलेंस शीट, मिल्कमैन, दूध वाला भैया जो घर पे आता है सुबह सुबह को, जो हम सब लोग सोते रहते हैं, दूध का पैकेट रख के चला जाता है. वी पे हिम एट द एंड ऑफ द मंथ, वो हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर. 1 लाख. वी डोंट पे द मिल्कमैन 1 लाख. आई एम जस्ट सेइंग बिजनेसेस के लिए देयर आर मेनी सप्लायर्स. वट एवर प्रोडक्ट यू मेक, okay, if you are a company by the name of Apple, big company in the world, but they have got so many suppliers, पूरी दुनिया में उनके suppliers है. Somebody is making the screen of the mobile, somebody is making the body of the mobile, somebody is making the chip in that mobile, A10, A7, A9, A12, Bionic, so many things, camera of the mobile, all are suppliers. Apple को उनको पैसा देना पड़ता है, फिर Apple हम लोग से लूटता है, but Apple also pays the suppliers. So on the liability side, always a suggestion, leave at least 6 lines. 6 lines, क्योंकि ना वहाँ पे कुछ ना कुछ बाद में आने वाला है, तो आप लोग थोड़ा जगह रखना वहाँ पे. जैसे बस में जाओगे ना, one side is meant for the ladies, तो वो पहले से ही जगह है, okay, so that they can safely come and sit. Next, sales, this will go to the trading account. So above first line, and then वो माइनस होगा 4,000. सो आउटर कॉलम 5,96,000 अबव सेल्स का. ओके, नेक्स्ट, कैपिटल्स विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. शीरीन फरहाद 2 लाख 1 लाख. कैपिटल अकाउंट में यू कैन नॉट यूज द वर्ड कैपिटल अगेन. क्रेडिट 2 लाख 1 लाख, सो यू हैव टू यूज द वर्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन, BALANS, बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रैकेट में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा है, क्योंकि मैंने पहले इसे पढ़ाया है. ओपनिंग कैपिटल, फर्स्ट डे का पुराना कैपिटल. आप ब्रैकेट का लिखना है तो लिखो, बट यू हैव टू राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर यू कैन नॉट यूज द वर्ड कैपिटल दोबारा. ओके, सो हमने क्या किया, वी हैव, I'm not saying finished the question, but definitely हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस खत्म कर लिया. Any more things? No. All the debit ones and all the credit ones हमने लिख लिया. Now very important, अभी हम लोग थोड़ा गणित करते हैं, मैथ्स. कि why do we prepare final accounts? We want to know gross profit, we want to know net profit, we want to know whether what we are doing is correct or not. Okay, कोशिश करते हैं. So follow me. And then second question में I will ask the same question from you. So here goes. Look at your factory. What should you get here? Normally gross profit. Normally. अच्छा, क्रेडिट का टोटल क्या है? 5,96,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, because I have not taught you adjustments. So don't worry, I am not getting into it. Closing stock nil. So क्रेडिट का टोटल, डेबिट इज लेस. डेबिट इज लेस. आप लोग दोनों का टोटल कर लो, डेबिट क्रेडिट, फिर क्रेडिट का टोटल ग्रैंड टोटल में लिखना दोनों साइड पे, और डेबिट सबट्रैक्ट करना माइनस. तो आपको एक डिफरेंस आएगा विच विल बी 3,77,000. दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. सो आई रिपीट, सर इतनी मेहनत की, सर पिछले 40 मिनट से हम आपको सुन रहे, क्यों? अरे इसके लिए आपको फैक्ट्री का प्रॉफिट आया कितना, 3,77,000. अरे सर प्रॉफिट आया मतलब पाड़ी टाइम, पाड़ी नहीं, पाड़ी मत कर. ओके, ये प्रॉफिट यहां से ले, मतलब फैक्ट्री से, और ऑफिस में लेकर आ, तो इधर टू और इधर बाय. इसके लिए फर्स्ट लाइन खाली रखते हैं. कितना? 3,77,000. आई रिपीट माई सेल्फ, क्या किया हमने? पहले ऊपर के ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म किया. कैसे? पेंसिल में डेबिट क्रेडिट दोनों टोटल लिख लो, जो हैवी है वो दोनों साइड पे, मैंने दोनों साइड पे लिखा, और फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा. ऑफिस में गया, अभी ऑफिस में हमको ढूंढना है नेट प्रॉफिट. ओके, डेबिट विल बी लेस,
50, 60, 70, 80, 90,000 कुछ कम है. क्रेडिट इज हैवी, तो क्रेडिट का टोटल 3,91,000 दोनों साइड पे. एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, सॉरी. हाउ मच इज दैट? 3,04,000. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज 3,04,000? देखो, डेबिट में खर्चा है, क्रेडिट में कमाई, कमाई ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट है. बट कौन सा प्रॉफिट? NET, नेट प्रॉफिट. किसके जेब में जाएगा? देखो, दो पार्टनर है, शिरीन फरहाद. शिरीन फरहाद दोनों को मिलना चाहिए. ओके, दोनों का नाम लिखा. लुक, नो चिटिंगबाजी, नो चिटिंगबाजी. शिरीन फरहाद. But both will get 3,04,000. No. Sharing. How to share? I've already taught you sharing ratio. I've given you the rules of the Indian Companies Act. If you look at the question, you will see no ratio. So, Shireen Farhad ka, there is no ratio. So now, sir, will they fight Roman style, Roman battle style, gladiator style, sir? Fight? No fighting business. समझदारी, wisdom. Okay? मतलब अरे हाफ हाफ दे दो ना. नथिंग वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाई मेक देम फाइट? हाफ हाफ. इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, हाफ हाफ. दो पार्टनर्स में हाफ हाफ, तीन पार्टनर्स में 1/3, 1/3, 1/3. ओ, सो 3,04,000 का हाफ विल गो टू शिरीन, यस, एंड हाफ विल गो टू फरहाद, यस. नो फाइटिंग. ओके सर, लेट मी गिव देम हाफ हाफ. हाउ मच इज हाफ हाफ? Sir, 1,52,000, 1,50,000. I want you to be doing this same thing in the homework question. So in the homework question, मैंने gross profit नहीं ढूंढा है, आपको ढूंढना पड़ेगा. मैंने net profit नहीं ढूंढा है, आपको ढूंढना पड़ेगा. And then comment box में बता देना. So we found out the profit. ये profit हम किसको दे दो ना, शिरीन फरहाद को. कहाँ पे दे? अरे उनका अकाउंट नेक्स्ट पेज पे है. ये 2 है, 2. तो उनका अकाउंट में अभी आप बाय करो. अच्छा, तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 1,52,000, 1,52,000. चलो दे दिया, फायदा दे दिया उन लोगों को. अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तुम टोटल करो. डेबिट तो 5,000 है, कम है, तो क्रेडिट हैवी है. ओके, तो चलो क्रेडिट का टोटल करते हैं. शिरीन 3,52,000 डेबिट, माइनस 5,000, 3,47,000. क्या है? कैपिटल. पार्टनर का कैपिटल. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कैपिटल आएगा. तो सर पहले तो आया वो ओपनिंग कैपिटल, अभी तेरे को आया क्लोजिंग कैपिटल. हाँ, लास्ट डे कैपिटल. अच्छा, शिरीन का हो गया, फरहाद का क्या? करो ना. 2,52,000 क्रेडिट, डेबिट में डिफरेंस माइनस 5,000, 2,47,000. दिस इज कैपिटल बट क्लोजिंग. To balance carried down, closing balance. We are going to do this, my dear students. At least 20 बार करने वाले हैं, 20 बार. डोंट वरी, आज मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर दे रहा हूँ कि इस तरह हमारी गाड़ी फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस से पार्टनर्स के घर में और पार्टनर्स के घर से बैलेंस शीट में. तो ये कैपिटल घूम फिर के लाइबिलिटी साइड में आता है. तो लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे कैपिटल शिरीन फरहाद 3,47,000 and 2,47,000. Please note, debit above in partners capital, and when we came down, just a minute, हाँ, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है. ओके, बैलेंस शीट में स्टोरी उल्टी होती है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्रेडिट है और एसेट डेबिट. तो ये कैपिटल हमने लाइबिलिटी में लिखा, पार्टनर्स कैपिटल. अभी उसका टोटल बाहर डालेंगे, 5,94,000. एंड देन एट द एंड थोड़ा दुआ करना पड़ेगा, अ लिटिल बिट ऑफ प्रेयर, दैट द टोटल ऑफ बोथ द साइड, लाइबिलिटी साइड 6,94,000 and the asset side 6,94,000 proves you are correct, that your final accounts. Now if you say, sir, party time, I'll say yes, abhi to pakka party time, definitely. So I repeat myself, this was to give you a brief idea, not a total idea, कि what is final accounts and how do I find out what will go in trading, profit and loss account, partners capital and balance sheet. Very quickly, let me take you to the next sum, otherwise this lecture I know will get very lengthy.
above, if you look, because this is partly the homework sum. Adi and Geeta partners, from the following trial balance and additional information, there is no additional information, नहीं है. Prepare trading profit and loss account and the balance sheet for the year ended 31st March 2021. Same format बनाओ, आदि एंड गीत वहाँ पे लिख लेना, ओके. एंड फिर मेरे साथ में ये एकदम सेम स्टाइल का पोस्टिंग करना. मुझे सिर्फ आपसे 3 आंसर्स चाहिए. एक, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये सम का, नेट प्रॉफिट क्या है, एंड बैलेंस शीट का टोटल क्या है, ओके. वो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखना, ओके. परचेज से 70,000. गो टू, अभी थोड़ी गाड़ी फास्ट होगी, ऊपर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में 70,000, 70,000. नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स एसेट में वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट सम, 1 lakh, वेरी सिमिलर. देन रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, हमने बेचा वापस आया, सेल्स से माइनस होगा 2000, सेल्स से माइनस होगा, सो अबाउ -2000. नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में अबाउ 30,000. लूज टूल्स, स्क्रू ड्राइवर, पाना, ड्रिल मशीन, लूज टूल्स 15,000. नेक्स्ट, कैश इन हैंड एसेट, ऑलमोस्ट द सेम सम, 12,000. कैश इन हैंड 12,000. ड्रॉइंग्स, पार्टनर, घर वालों के लिए, घर वाली के लिए 2,500, 2,500. सो अबाउ ड्रॉइंग्स 2,500, 2,500. डेबिट, अभी डेबिट की गाड़ी चल रही है. बैंक चार्जेस, बैंक हमारे लिए बहुत काम करता है, फैक्ट्री में नहीं करता, ऑफिस में करता है, क्योंकि बैंक का सब पेपर वर्क होता है. तो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा बैंक चार्जेस 3,500. एंड आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, वेल नॉट लास्ट टाइम, टुडे, डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला बानो, वो मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा विथ सम एग्जाम्पल्स कि उसका मतलब क्या है. नेक्स्ट, कोल, गैस एंड वाटर, फैक्ट्री में इट इज रिक्वायर्ड, सो वी राइट टू कोल, गैस एंड वाटर 2,500. सैलरी 6,000, ऑफिस में ऊपर 6,000. लीगल चार्जेस 15,000, वकील को हम लोग ये पे करते हैं ऊपर, एंड इट इज द सेम, मतलब नेक्स्ट सम में चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम. देन कम्स वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर को कहते हैं वर्क्स मैनेजर. 2 लाइन में लिखना है, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9,000 दे, फैक्ट्री का मैनेजर. डिस्काउंट, इट इज दिमाग का काम जो ऑफिस में होता है, तो आप डेबिट में लिखो 2 डिस्काउंट 10,000, 2 डिस्काउंट 10,000. गुडविल, गुड रेपुटेशन, मेहनत करके जो इज्जत, नाम, शोहरत बनाया है, ओके, तो वो काम आएगा आपको, आपके बच्चों को, आपके फैमिली वालों को, आपके पड़ोसी को. 70,000. So asset side about 70. नेक्स्ट, पेटेंट, आप कुछ नया इन्वेंट करो, दवा इन्वेंट करो, मशीन इन्वेंट करो, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंट करो, यू गेट अ पेटेंट, यू गेट अ सर्टिफिकेट. ये आपका इन्वेंशन है, कोई कॉपी नहीं करेगा. एसेट 1,50,000. Okay, it is called as an intangible asset. Intangible, I'll give you more idea about tangible, intangible थोड़े future में. Next, bad debt,
10,000. You have a formula called as Bano. उसके B में first line above 10,000 inner column. Okay, so customer भाग गया, हमारा तो नुकसान हो गया, bad debt. अभी डेबिट खत्म, अब क्रेडिट स्टार्ट. कैपिटल 1,50,000. फॉर कैपिटल देयर इज अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल. उसके क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग फर्स्ट डे का 1,50,000. दोनों लिख लेना. नाउ वी आर इन द क्रेडिट, तो गाड़ी हमारी क्रेडिट में चलेगी, क्रेडिट के पटरी पे चलेगी. सेल्स 3 लाख, फैक्ट्री में लिख लो, सो उधर ऊपर. एंड देन 3 लाख माइनस 2,000, 2,98,000, 2,98,000. क्रेडिटर को आपने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा. लीव द फर्स्ट 6 लाइन्स, बाद में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर 50,000. प्रॉमिस टू बी पेड, यू हैव प्रॉमिस्ड के महीने के एंड को आना, तुम्हारा पैसा लेके जाना. रिटर्न आउटवर्ड, जो खरीदा वापस दे दिया. परचेस रिटर्न, ओके, कितना 2,000. परचेस रिटर्न, so write it in the line of purchase return and then minus and put it outside. 68,000. RDD कौन सा, ये तो पहले से ही है, ओल्ड RDD पहले से ही है. ओके, सो अबाउ एंड देन माइनस करके बाहर डालो 9,000. ओके, सो टुडे देर इज ओनली bad debt and old RDD. RDD is reserved for doubtful debt. Don't worry, I'll explain it as and when the time comes. Next, discount and commission. 3,000 4,000 दोनों mind का काम. Okay, when I point here, okay, don't think sir is saying नहीं ऐसा नहीं, दिमाग का काम. So office में credit side पे the first line is left for gross profit and commission. Very quickly, I understand this lecture is a little bit longer, but be prepared, lectures will be a little bit longer. So homework के लिए क्या है, वो जो डेबिट है ना उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और यहाँ पे जो है ना नेट प्रॉफिट आएगा. तो आप लोग सॉल्व करो ये पूरा. ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या आया, नेट प्रॉफिट आपको क्या आया, और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कितना आया. प्लीज शेयर इट विथ अस इन द कमेंट बॉक्स. तो थोड़ा बातचीत कमेंट बॉक्स में भी हो जाएगा, कमेंट बॉक्स को बुरा भी नहीं लगेगा कि यार मेरे को तो यूज ही नहीं करते हैं. सो प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू डू दैट. आई रिपीट, यू विल एंड विथ दिस पर्टिकुलर फ्रेम. So you will get a total on the liability side and a total on the asset side, and दोनों same आना चाहिए. Okay, that is it for today. I hope the explanation, I tried my best to go as slow as possible. There is a big possibility, big gunjaish. Sir, I didn't understand that item, that item. Don't worry, 20 times more ये chapter करना है text book से. So there are many items जिसको repeat करेंगे. You will get good, better, best. वही एक डायरेक्शन है, good, better, best. Just be a little bit patient. You will, when the appropriate correct time comes, तब आपको जो डिफिकल्ट की चीज़ें हैं तब मैं आपको पढ़ा दूंगा. अभी जैसे मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ सेरेलैक के दिन है, सेरेलैक तो सिंपल है, डाइजेस्ट करने के लिए मैंने बता दिया है. द मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स विल कम इन फ्यूचर. ओके, आई होप दिस एक्सप्लेनेशन is understood by you. If it is, please lecture को like कर देना. Share these lectures with your friends so that the news of lectures on this platform meant for Maharashtra Board HSC level spreads to more and more people, and these lectures are useful just like to you, to them also. Okay, at my end I will do my best to have the entire syllabus little by little again जब भी उसका टाइम आता है for it to be available on this particular platform. अगर कुछ doubts रहेंगे besides the homework assignments का answers, वो आप comment box में लिख सकते हो. PDF of the question and answer will be available in the description below, as well as
on the Telegram channel at the end of the entire lecture series. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. Take care of yourself, take care of your seniors and juniors, of your lovely family members. I will meet you very very soon with a continuation of this chapter, not exactly from the textbook क्योंकि मुझे adjustments पढ़ाने हैं. तो next time हम लोग वो करेंगे कि adjustments होते क्या है, adjustments को किस तरह solve करते हैं और adjustments का बाकी का रहस्य क्या होता है. तब तक के लिए sit tight, take care. I will meet you soon. God bless. Good day.